Hello, friends. Welcome back again on the I Have a Vision Academy YouTube channel. In short, I Have Academy. So, without any further ado, let's jump straight to today's topic, that is winds. So, actually, we have started this particular thing and I have discussed and clubbed it with the pressure belts. So the yesterday's diagram, if you remember, वही हम आज वापस बनाने जा रहे हैं. Also we will be making world map. But how do we approach this particular topic? So it can be subcategorized into three things. The first is the primary or permanent wind, the second is secondary or regional winds, and the third one is local winds. So इसी में हम पढ़ने वाले हैं. So first we will be starting with primary or permanent winds, which I have told you in the previous classes. But in today's class we will be clubbing another topic with these primary wind. और वो क्या है? Yes, different kinds of biomes, different kind of climates, weather. जिस पे GC लियों के full chapters हैं वो तो आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं. But this is the complementary thing. So पहले कल की चीज़ें बना लेते हैं. आपको एक्सप्लेनेशन भी चाहिए क्या कल का? अगर जल्दी से बताएं तो. So I have told you this is our earth. What is the nomenclature of this belt? Equatorial low pressure belt. Due to the high temperature, the pressure is inversely proportional. The pressure is very low. It means it will suck air from both the hemispheres, and this air is called the trade winds or easterlies या tropical easterlies. So दोनों साइड से करेगा. कोरोनिस फोर्स अपना अंदाज़ा लगा लेना. इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट और ITCZ. When there is a convergence of the trade winds from both the hemispheres, the line or point is known as the ITCZ, intertropical convergence zone. Now the air or the trade winds from the two hemispheres are colliding with each other, so only one direction remain in which they both can bend or they both can go, that is upward. So ऊपर चली जाती है. जैसे ही यहाँ से ऊपर जाएंगी तो उसके बाद अपर एयर डाइवर्जेंस होगा. अपर एयर डाइवर्जेंस होगा, सो इन द थ्योरेटिकल सेंस they will descend at the poles, but due to the heavy weight of the air, क्यों? Environmental lapse rate and normal lapse rate. Due to the heavy weight of the air, they will descend at क्या ये सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट. सो यहाँ लिख लीजिए अब. दिस इज इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट. Subtropical high pressure belt. This is yet another subtropical high pressure belt. Next we have subpolar low pressure belt. Here also subpolar low pressure belt. And at the last we have the two polar highs. So this particular air, upper air divergence taken place, then the air will descend due to the heavy weight at subtropical high pressure belt. Now there is a irony in this. Irony क्या बताई थी मैंने? Yes, in the temperature distribution we have studied that maximum amount of temperature हम कहाँ ऑब्जर्व करते हैं? Yes, at the tropics, ना कि at equator. equator पे क्यों नहीं? Because of two things, cloud cover and continuous rainfall. But आप यहाँ देख पा रहे हैं
टेम्परेचर सबसे ज़्यादा हमें ट्रॉपिक्स में मिलेगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है प्रेशर के, मतलब प्रेशर हमें लो मिलना चाहिए, बट सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, सो इट इज़ हैंस डायनामिकली क्रिएटेड। तो थर्मली कौन सी क्रिएटेड है? इक्वेटोरियल लो एंड पोलर हाई, दीज थ्री आर thermally created, and the rest, the subpolar low, subtropical high, and these all too, these are created dynamically. Understood? बना लीजिए इसे वापस। So the air has been descended at subtropical high pressure belt। फिर वहाँ से क्या होगा? वहाँ से नीचे जाके ग्राउंड में बाइफरकेट हो जाएगी, एक हमारी वापस ट्रेड विंड्स बन गई और एक हमारी बन गई वेस्टर्लीज। आई हैव टोल्ड यू अगेन एंड अगेन, द नोमेनक्लेचर ऑफ एयर इज डन बाय इट्स ओरिजिन। तो ओरिजिन कहाँ से है? ये कहाँ है? वेस्ट से जा रही है ईस्ट में, डेट्स वाई वेस्टर्लीज। ये क्या है? ईस्ट, यहाँ जाए वेस्ट, तो ईस्ट से जा रही है वेस्ट पे, इट मीन्स ईस्टर्लीज और ट्रेड विंड्स। तो फिर ये यहाँ वेस्टर्लीज की तरह जाएगी। आप अपना कोरियोलिस फोर्स भी लगा सकते हैं, जो मैं कंसेप्ट बता रहा हूँ इसको भी आपको समझना पड़ेगा। देन आई हैव टोल्ड यू कि यहाँ बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर है, पोलर हाई प्रेशर बेल्ट है, सो इसका मतलब वहाँ से एयर दूसरी जगह भागेगी। तो अगर भागेगी तो वी हैव पोलर ईस्टर्लीज। सो यू कैन सी डैट एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट इट इज़ द जोन ऑफ फ्रंट्स। याद रखना, इट इज़ द जोन ऑफ फ्रंट्स। कहाँ? सब पोलर लो। ये फ्रंट्स क्या होता है? दीज आर रिलेटेड टू टेम्परेट साइक्लोन्स। सो फॉर द फॉर्मेशन ऑफ फ्रंट्स वी नीड टू कंडीशंस। द फर्स्ट वन इज, ये एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, वापस हम पढ़ेंगे। द फर्स्ट वन इज डिफरेंस इन टेम्परेचर ऑफ टू एयर masses, and the second is ground level convergence. So these are two main points regarding the formation of fronts. So अब देख लीजिए why fronts are formed only on the sub polar low pressure belt। सब polar low पे ही ये क्यों बन रहा है? अच्छे से देखिए, हमको ये दो कंडीशन सेटिस्फाई करानी है। कैन वी सी द ग्राउंड लेवल कन्वर्जेंस समवेयर एल्स? अगर इसको हटा दे तो यस, वी कैन सी एट इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट। अब दूसरी कंडीशन लगाइए, डज वी हैव द डिफरेंस इन टेम्परेचर ऑफ टू एयर मासेस? नो। व्हाई? बिकॉज बोथ आर ट्रेड विंड्स। तो यही दिक्कत हो जाती है, एंड दैट्स व्हाई फ्रंट्स आर नॉट फॉर्म्ड एट द इक्वेटोरियल रीजन। वापस देखते हैं, यहाँ सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट पे ये तो ग्राउंड लेवल ही डाइवर्जेंस हो रहा है, तो यहाँ तो बन नहीं पाएंगे। बट डज वी हैव द डिफरेंस इन टेम्परेचर ऑफ टू एयर मासेस? यस, हेयर इज द कंपैरेटिवली डिफरेंस बिटवीन द टेम्परेचर ऑफ टू एयर मासेस। एयर मासेस की जगह आप अभी विंड से मान लीजिए, कोई बड़ी बात नहीं है, बाद में हम एयर मासेस भी समझेंगे, तब आपको ये कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एंड द लास्ट थिंग, द सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट। तो इसमें देखिए पहली कंडीशन, डिफरेंस इन टेम्परेचर ऑफ टू एयर मासेस, यस, वन इज कमिंग फ्रॉम पोलर हाई एंड सेकेंड इज कमिंग फ्रॉम सब ट्रॉपिकल हाई। सो यहाँ की गर्म होगी, वहाँ की ठंडी होगी, दैट्स वाई द फर्स्ट इक्वेशन हैज बीन टिक्ड। द सेकेंड इज अ ग्राउंड लेवल कन्वर्जेंस, सो यस, देयर इज अ ग्राउंड लेवल कन्वर्जेंस, सो हेंस द फॉर्मेशन ऑफ फ्रंट्स कैन बी टेकन प्लेस एट सब पोलर हाई प्रेशर बेल्ट, सॉरी सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट। तो इतना समझ आ गया। अगर एक्सप्लेन करते करते मेरे मुंह से सब पोलर हाई निकल जाए या इक्वेटोरियल हाई निकल जाए, तो आप समझ जाना ये मैंने जो आपको बताया है यही पूरा बेसिक कंसेप्ट है। अंडरस्टूड? माइंड में तो मैं वही सोचता हूँ जो बोल रहा होता हूँ, बट क्या कर सकते हैं मुंह का। सो मैंने आपको ये पिछले क्लासेस में एक्सप्लेन कर दिया था। अब थोड़ा इससे जो वेदर और क्लाइमेट चेंजेस है वो देख लीजिए। सबसे पहले हम फैक्टर्स डिस्कस कर लेते हैं, काम करते हैं। ये तो कल की क्लास मैंने बता दी, थोड़ी सी एक्स्ट्रा नॉलेज बता दी। सो फैक्टर्स,
affecting winds. So the first one is so these are the four factors which are affecting the winds or wind speed. The first one is Coriolis force. In the previous or yesterday class I have told you almost 80% about Coriolis force. कुछ चीज़ें हैं. Actually Coriolis force is present in the imagination terms. It is a imaginary force. So it is present due to the rotation of the earth. ठीक है. कोरियलिस फोर्स की एक बार छोटी सी एनिमेटेड वीडियोज़ है यूट्यूब पे जाके एक बार आप वो देख लीजिए, आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा. सो इट इज़ अ इमेजिनरी फोर्स. सो हेंस द फर्स्ट पॉइंट इज इट प्रोवाइड्स नो मैग्नीट्यूड, नील मैग्नीट्यूड टू द डायरेक्शन. इट इज़ प्योरली अ डायरेक्शनल फोर्स. ठीक है, कोई भी मैग्नीट्यूड, कोई भी एक्चुअल फोर्स प्रोवाइड नहीं करेगा ये मोशन में. द सेकेंड पॉइंट इज एज इट इज़ प्रेजेंट बिकॉज ऑफ द रोटेशन ऑफ द अर्थ. तो एक बात बताइए, ये अर्थ रोटेट हो रहा है ऑन इट्स एक्सेस. ये पॉइंट, एक यहाँ पॉइंट है, ये सबसे तेज घूम रहा होगा या ये सबसे तेज घूम रहा होगा? थोड़ा सोचिए, ब्रेनस्टॉर्म कीजिए आराम से. समझ आया कुछ आपको? थोड़ा सा भी कॉमन सेंस लगा? So the man standing here on earth is rotating faster. जो यहाँ खड़ा है, it is rotating in slow speed. अगर आपको नहीं समझ आया तो थोड़ा सा और बैठ के सोचिए, ये कॉमन सेंस से आपको समझ आ जाएगा कि ये वाला जो है ये फास्ट ट्रैवल कर रहा है और ये है ये स्लो ट्रैवल कर रहा है. क्यों? हाँ, डायमीटर पे ही है. इक्वेटर हैज़ द लार्जेस्ट डायमीटर. इस पे जो हमारा इक्वेटर है वो डायमीटर पे ही है सर्कल के. सो डेट्स वाई ये पॉइंट सबसे स्लो घूम रहा होगा और ये पॉइंट तेज घूम रहा होगा. सो हेंस अगर इफ़ यू मूव अवे फ्रॉम द इक्वेटर द कोरियोलिस फोर्स इज स्ट्रेंथेंड. इफ यू आर मूविंग टुवर्ड्स द इक्वेटर द इफेक्ट ऑफ द कोरियोलिस फोर्स विल डिक्रीज. It means at equator the Coriolis force is 0. Understood? क्योंकि ये जो पूरी पॉइंट्स हैं डायमीटर पे, ये तो अपनी एक जगह पे ही है, घूम रहा है पर अपनी काइंड ऑफ जगह पे ही है क्योंकि इक्वेटर के सर्कल के एकदम बीच में है. सो इक्वेटर पे कोरियोलिस फोर्स इज 0. और बाद के लिए अंडरस्टैंडिंग के लिए ये भी लिख लेना, डेट्स वाई देर इज़ नो ट्रॉपिकल साइक्लोन फॉर्मेशन एट द इक्वेटर. बट यूपीएससी इज़ वेरी ट्रिकी. ही मे आस्क यू द कोरियोलिस फोर्स इज 0 इन द इक्वेटोरियल रीजन. सो देयर इज अ स्लाइट डिफरेंस बिटवीन इक्वेटोरियल रीजन एंड एट इक्वेटर. सो इक्वेटर इज 0 डिग्री. Equatorial region is 0 to 10 degree north and 0 to 10 degree south. So this is the main difference. So this statement is incorrect. There is a minimum effect of Coriolis force in the equatorial region. This is the correct statement. The effect of Coriolis force at equator is 0. This is also correct statement. दोनों के बीच में डिफरेंस समझ आ जाएगा. वापस वीडियो को रिवाइज पीछे करके देख लेना. देन इसकी डायरेक्शन मैंने आपको बताई थी. सर्कल बनाइए, इसका इक्वेटर बनाइए, एक पॉइंट बनाइए जहां आप बैठोगे और सी लिख दीजिए. कोरियोलिस फोर्स स्टार्ट्स विद सी, तो हम सी लिख देंगे. डायरेक्शन दे दे एरो की. अब क्या करना है, हमको इस पॉइंट पे बैठना है. इस पॉइंट पे बैठ के इफ़ वी आर सीइंग द नॉर्थ, तो नॉर्थ में कहाँ, खुद ही ये मुड़ गया है, कहाँ जाएगा कोरियोलिस फोर्स? यस, इट विल मूव द विंड्स एट राइट. अगर हम नीचे सदर्न हेमिस्फीयर की बात कर रहे हैं तो वापस पॉइंट पे अपने आप को बैठा दीजिए और नीचे देखिए सदर्न हेमिस्फीयर की तरफ. तो सदर्न हेमिस्फीयर में कहाँ मोड़ रहा है, देखिए सी कहाँ है? यस, लेफ्ट में. तो ऐसे आपको अच्छे से याद हो जाएगा. 0 डिग्री एट इक्वेटर एंड दिस फोर्स
will act perpendicular to isobars. ठीक है. Next is pressure gradient force. Now pressure gradient force is directly proportional to wind velocity. Pressure gradient force क्या है? देखिए यहाँ हाई प्रेशर है, यहाँ लो प्रेशर है. But what is the magnitude of this high pressure and low pressure? That is determined by the pressure gradient force. अगर मान लीजिए इधर है 10 मिलीबार, यहाँ 11 मिलीबार, तो yes it is high pressure, it is low pressure, but the pressure gradient force is not of huge magnitude. But मान लीजिए यहाँ है 100 और यहाँ है 11. Now the pressure gradient force is of huge magnitude, as well as I have told you that pressure gradient force is directly proportional to the wind velocity. तो उतनी ही तेजी से ये filled up होगा. Understood? So this is nothing but pressure gradient force. ये perpendicular to isobar हटा के यहाँ लिख लीजिए, they act always perpendicular to isobars. What is isobars? We have studied isotherms, equal temperature line. Isobars means equal pressure lines. फ्रिक्शनल फोर्स आपको पता ही है, जो भी हम ग्राउंड पे चलते हैं, सो वी एक्सपीरियंस है बैकवर्ड फोर्स. फ्रिक्शनल फोर्स जहाँ भी हम मूवमेंट कर रहे हैं उसके बैकवर्ड में. सो हम बात कर रहे हैं अपर एयर सर्कुलेशन की, तो उसमें फ्रिक्शनल फोर्स यस कोई फ़ायदा नहीं है, कोई इफेक्ट नहीं देगा. सो यस देयर इज़ अ प्रेजेंस ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स एट द ग्राउंड लेवल, बट इट इज़ नील, ज़ीरो इन द अपर एयर सर्कुलेशंस. The last one is gravitational force. This force is related to the local winds. जैसे हमने वैली इन्वर्जन पढ़ा था. So yes, वहाँ क्या काम कर रहा है? Gravitational force. The cold air is becoming heavier and hence with the effect or aid of gravity, it is going into the valley. तो टेम्परेचर इन्वर्जन हो रहा था. सो उसमें मैंने बताया था एनाबैटिक एंड कैटाबैटिक, तो वो हम पढ़ेंगे. सो दिस इज द फैक्टर्स दैट अफेक्ट विंड स्पीड. जियोस्ट्रॉफिक विंड्स ऐसी विंड्स हैं जो कि आइसोबार्स के पैरेलल फ्लो होती है. ठीक है, ये बस पॉइंट लिख लीजिए, हम बाद में पढ़ेंगे जियोस्ट्रॉफिक विंड्स क्या होती है, जेट स्ट्रीम्स क्या होती हैं. सो दीज आर द विंड्स दैट फ्लो पैरेलल टू द आइसोबार्स. नहीं तो कोई भी दूसरी विंड पैरेलल टू द आइसोबार फ्लो नहीं होती. यहाँ लिख लीजिए परपेंडिकुलर टू प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स. ये होता है परपेंडिकुलर टू प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स. इतना देखिए. अब हम इससे रिलेट करेंगे हमारे बायोम्स एज वेल एज क्लाइमेट. नाउ कंसनट्रेट ऑन द बोर्ड फॉर नेक्स्ट 15 to 20 मिनट्स. इससे ज़्यादा मैं टॉपिक नहीं लूँगा, बिकॉज इन द नेक्स्ट सेक्शन वी विल बी स्टार्टिंग इंडियन मॉनसून. मैं बात कर रहा हूँ इस रीजन की. दीज आर ट्रेड विंड्स और ईस्टर्लीज. ईस्टर्लीज है मतलब दे आर फ्लोइंग फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट. सो अगर आप अपने एटलस खोल लीजिए, अगर हमको ईस्टर्लीज को देखना है, वी हैव टू ऑब्जर्व द ईस्टर्लीज. सो अगर कोई बीच में कॉन्टिनेंट आ गया तो उस कॉन्टिनेंट के वेस्ट में होंगी, टकराएंगी या ईस्ट में टकराएंगी, ये बताइए मुझे. आपकी तरफ ही मैं अपना डायरेक्शन कर लेता हूँ. हमारे पास ये कॉन्टिनेंट है एंड वी आर टॉकिंग अबाउट ट्रेड विंड्स और ईस्टर्लीज. तो ये ईस्ट से आएंगी, इसका मतलब ये ऐसे आ रही होंगी. कैसे आ रही होंगी? ये ऐसे आ रही होंगी. तो ये कॉन्टिनेंट्स के कौन से कोस्ट पे आएंगी? दिस इज़ द ईस्ट कोस्ट, दिस इज़ द वेस्ट कोस्ट. तो ये कॉन्टिनेंट्स के ईस्ट कोस्ट पे आएंगी.
समझ में आ गई आपको बात? तो हमें ईस्ट कोस्ट में क्या मिल जाएगा? ट्रॉपिकल डेसिडियस। ये बहुत ही ऊपर से बता रहा हूँ मैं। इफ़ यू वांट टू गो इनटू द डीपर कंसेप्ट अंडरस्टैंडिंग प्लीज़ रिफर टू जीसी लियो। तो यहाँ हमारे पास ट्रॉपिकल डेसिडियस। फिर बीच में बारिश थोड़ी कम हो गई, क्यों? बिकॉज यहाँ तो पानी था, अब बारिश थोड़ी कम हो गई तो क्या आएंगे? यस, सवाना और ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स। एंड एट द वेस्ट वी हैव, आई हैव टोल्ड यू, द हॉट डेजर्ट्स। वाई? बिकॉज देर इज नो वाटर रिमेनिंग इन द एयर। सो क्या होगा वेस्ट कोस्ट पे? ऑफकोर्सली हॉट डेजर्ट्स आएंगे। सो सवाना और ट्रॉपिकल ग्रासलैंड बीच में आ जाएंगे। ऐसा पेड़ क्यों बनाया मैंने बताऊंगा अभी थोड़ी देर में। एंड ऑन द वेस्ट पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट्स वी हैव हॉट डेजर्ट्स। सो दीज आर द जोन ऑफ ट्रेड विंड्स और ईस्टर्लीज। तो मिल गए हमको तीन चीज़। ट्रॉपिकल डेसिडियस जो पतझड़ के मौसम, पतझड़ वाले पेड़ होते हैं उनको बोलते हैं ट्रॉपिकल, ट्रॉपिक्स में डेसिडियस पतझड़ वाले। द सेकेंड इज द ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स। नाउ वी हैव टू टाइप ऑफ ग्रासलैंड्स। द फर्स्ट इज ट्रॉपिकल, द नेक्स्ट वन इज टेम्परेट. Up till the Tropic of Cancer in the northern hemisphere and Tropic of Capricorn on the southern hemisphere, the area between these two is called tropical region. उसके बाद जो आएगा उसको बोलते हैं टेम्परेट, उसके बाद जो आएगा उसे बोलते हैं पोलर. ठीक है. So now we have two type of grassland. The first one is tropical grasslands and the second one is temperate grassland. Tropical grasslands examples are कैंपोस, कहाँ है? ब्राज़ील में. लानोस इन वेनेजुएला and the last one is savanna which I have told you in अफ्रीका. तो सेंट्रल अफ्रीका में आपको सवाना मिल जाएंगे. सो दीज आर द 3 ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स. अब इसके आगे चलते हैं. इसके आगे के नीचे ही बता देता हूँ, आपको अच्छा लगेगा, थोड़ा रिलेट कर पाओगे. Now we are talking about the westerlies. So westerlies zone can be divided into 2 latitudes. एक तो है 25 to 35 डिग्री, that is lower latitude. एक है 35 up to 60. तो ये दो में हम पढ़ते हैं. कैसे पढ़ते हैं देख लीजिए. Now we are talking about westerlies. आपके साइड मूव कर लेता हूँ. वेस्टर्लीज कैसे फ्लो होंगी? ऐसे होंगी ना? ऐसे होंगी? नहीं. ऐसे क्यों होंगी? ऐसे होंगी फ्लो, क्योंकि हमें ईस्टर्लीज वहाँ से मिल रही थी. ये थी ईस्टर्लीज के डायरेक्शन. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट वेस्टर्लीज, मतलब ऐसे जाएंगी. देख लीजिए. सो ऐसे फ्लो होंगी. सो इसी से हमारा बनता है मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट, विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लाइमेट दैट वी हैव टू रिमेंबर. क्यों? बिकॉज विंटर रेनफॉल इज देयर इन मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट. सो दिस इज द मोस्ट बेसिक क्वेश्चन दैट यूपीएससी कैन आस्क. और ये बहुत ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में इन डिफरेंट एग्जाम्स आया हुआ है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेट एग्जाम्पल्स. नीचे लिखा है मेडिटेरेनियन, ब्रिटिश टाइप, इंडियन टाइप, और लास्ट में लिखा है क्वेश्चन क्या है? दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्लाइमेट हैज़ विंटर रेनफॉल, आइडेंटिफाइड द क्लाइमेट. तो मेडिटेरेनियन क्लाइमेट. तो हमारे पास आता है मेडिटेरेनियन. इसको आप इन द बहुत ही रफ सेंस में ब्रिटिश टाइप भी बोल सकते हैं. और ब्रिटिश टाइप ऑफ क्लाइमेट बहुत ही अच्छा है. क्यों? बिकॉज वहाँ मैरीटाइम इफेक्ट हो जाता है. मतलब समर डेज विल बी लेस वार्म एंड विंटर डेज विल बी लेस कोल्ड. उल्टा टाइप हो जाता है. अब आते आते पानी सूख रहा है थोड़ा धीरे धीरे, तो बीच में मेडिटेरेनियन टाइप तो हो गया. अब पानी सूख रहा है, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड तो हो गए. नाउ वी आर एंटरिंग इनटू टेम्परेट जोन. सो टेम्परेट ग्रासलैंड्स. एंड द लास्ट वन इज द चाइना टाइप और temperate marine. So these are the 3 other climate.
नाउ टेम्परेट ग्रासलैंड्स, देखिए हमने एक ट्री बनाया था. इन टेम्परेट ग्रासलैंड as the humidity in air is less, so here we have only grasses, no trees. So this is one of the difference between tropical and temperate grasslands. In tropical grasslands, as there is comparatively little more water present in the air, that's why it can also sustain the trees. But due to the high wind speeds, the trees will not let their parts टू फुल्ली फ्लोट इन द एयर. क्यों? बिकॉज बार बार टूटते रहेंगे. दे आर ऑल्सो द लिविंग बींग्स, सो दे हैव अडेप्टेड टू दिस हाई वेलोसिटी विंड्स. तो उन्होंने क्या किया? यस, इंस्टेड ऑफ ग्रोइंग और स्प्रेडिंग देयर कैनोपी, द अपर पार्ट, द क्राउन पार्ट, उन्होंने क्या किया? दे हैव फ्लैटेंड देयर कैनोपी. तो ये देखिए फ्लैटेंड ट्री है ताकि ऊपर से हवा पास हो रख सके. अंडरस्टूड? नाउ दिस वेस्टर्लीज, ये हमने बात की है ऑन द नदर्न हेमिस्फीयर. बट इन द सदर्न हेमिस्फीयर आई हैव टोल्ड यू देर इज द abundance of water, so there is very less amount of land in the southern hemisphere. So these westerlies are in the southern hemisphere are known as roaring 40s, freaking 50s and shaking 60s. ऐसा कुछ नाम इनका आप देख लीजिए. ठीक है, रोरिंग 60s, स्ट्रिकिंग 70s, ऐसे करके इनका नाम है बहुत. तो ये वेस्टर्लीज होती है. ठीक है, तो ये हम बात कर रहे थे थोड़े लोअर लैटिट्यूड में, 25 to 35 के बीच में. 35 एंड अबाउ, 35 to 60 डिग्री नॉर्थ एंड 35 to 60 डिग्री साउथ, यहाँ क्या पाया जाता है? इधर वी विल हैव द बोरियल फॉरेस्ट. बोरियल और अनदर नेम इज टाइगा फॉरेस्ट. So here now this water will precipitate as snow. तो यहाँ स्नो, आइस, बर्फ़ पड़ने वाली है. अगर बर्फ़ पड़ेगी, सो हेयर वी विल फाइंड द सॉफ्ट फूड, coniferous trees. So that's why in boreal or taiga we will find particular these things. And beyond this taiga or boreal forest there is no forest at all. So very primitive life can be able to sustain at that high, not high, that low temperatures, जिसको बोला जाता है टुंड्रा रीजन. हमने पहली क्लास में भी देखा है. तो टुंड्रा रीजन इसी से ऊपर होता है. उसके नीचे टाइगा आ गया, उसके नीचे हमारे पास ये तीन आ गए, उसके बाद ये आ गए. अंडरस्टूड? सो हमने ख़त्म कर लिया है हमारा विंड्स का पार्ट. अच्छा, एक अच्छी चीज़ तो बताना ही भूल गया आपको, ये टेम्परेट ग्रासलैंड्स. नाउ टेम्परेट ग्रासलैंड्स आज बना ही लेते हैं मैप, थोड़ा अच्छा लगेगा, बहुत दिनों बाद मैप बनाएंगे.
सो दिस इज़ द वेरी रफ मैप। अब थोड़ा देख लेते हैं हम कि टेम्परेट ग्रासलैंड कहाँ है, ट्रॉपिकल कहाँ है। तो टेम्परेट को थोड़ा ब्लू में रिप्रेजेंट कर देते हैं और ट्रॉपिकल को ब्लैक में। तो हमने पढ़ा था पहले ट्रॉपिकल कहाँ का है, सवाना। सो दिस इज सवाना ट्रॉपिकल ग्रासलैंड। द सेकेंड इज द कैंपोस इन ब्राज़ील, then Peninsula Llanos. So these are the three tropical grasslands. Now we will study the temperate grassland. North America, prairies. South, pampas. South Africa, velds. फेल्ड बोलते हैं पर लिखते वेल्ड्स हैं, वेल्ड्स। हंगरी, पुश्ताश। चाइना, मंचूरिया। डाउन्स, ऑस्ट्रेलिया। न्यूजीलैंड, कैंटनबेरी। एंड सेंट्रल या यूरेशिया या रशिया के पार्ट में स्टेपीज। सो दीज आर ऑल द temperate grasslands as well as I have denoted the tropical grasslands also. So यही रखते हैं आज की क्लास। अगर आपको अच्छी लग रही क्लास, आपको यूजफुल कंसेप्ट्स लग रहे हैं, सो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।